Students, let us discuss the exercise 4.3 of the chapter Simple Equations. So, what is the question 1 given here? We have to solve the following equations. So, let me start the stepwise solutions for this question. You can see the LHS side there is a one part of fraction 5 by 2 and RHS also 37 by 2 is the fraction. We'll keep this variable part 2 times of y here only, and by the method of transposition I am going to transpose this 5 by 2 which is in positive to the RHS side, and it will become negative of 5 by 2. 2 and 2 base is same, numerators can be solved very easily. 37 minus 5 will give you 32. 32 by 2. If we cross cut it, we will get 16. 2y equals to 16. 2 times y means 2 is multiplied with y. So y will be here, and 2 when transpose, this is in multiplication here, in RHS it will get divided 16 upon 2. Cross cut it 8 times. So y equals to 8. This is the question number 1a part. Now let us solve the question number 1b part. What is the b part question here? This is given as 5t plus 28 is equals to 10. This is positive 28. When transpose, it will become negative of 28. 5t equals to 10 minus 28. When 10 will subtracted with negative of 28, it will give you negative of 18. 5t equals to negative 18. T equals to what? Minus of 18 divided by 5. Because 5 is multiplied with t, when transpose, it will get divided with. Let's see the C part. A upon 5 plus 3 equals to 2. Plus 3 will transpose there. It will become as negative of 3. 2 minus 3. It will give you what? Minus of 1. So, this implies A upon 5 equals to minus of 1. Since 5 is divided with A, okay? A upon 5. So, when it is transposing, it will get multiplied with minus of 1. Or, simple way, what we have done earlier, multiplied both sides with 5. This is divided, multiplied with 5, minus 1 also multiplied with 5. A equals to negative of 5. C part is done. Now let us solve the D part. Q by 4 plus 7 equals to 5. Plus 7. Transpose it there. It will become as 5 minus of 7. 5 minus of 7 gives you minus 2. Q by 4 equals to minus of 2. So, this is 4 divided, it will transpose, it will get multiplied. Q equals to minus 2 into 4. This implies Q equals to minus of 8. This is the solution for the D part. Now come to the E part. E is 5 upon 2 times x equals to minus of 10. 2 is in the denominator. It will move here and multiplied with minus 10. 5x be here. 2 is in the denominator. It will move up. Divided, transpose, multiplied with minus of 10. So 5x equals to minus 20. X equals to minus 20 by 5. 5 4s are 20. X equals to negative of 4. E is done. Now let us solve the F. Here 2 is in the denominator. It will move up. 5x equals to 25 by 4. डिनोमिनेटर है तो ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा. यू कैन यूज़ दिस वे और द अनदर मेथड विच आई टोल्ड यू 5 अपॉन 2 है.
नीचे है डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x तो आपका ऑलरेडी था, सो व्हेन x इज मल्टीप्लाइड इन LHS, x विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड इन RHS। 25/4 था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। आइदर यूज़ दिस मेथड और यूज़ दिस मेथड। डिवाइडेड है ये 5 के साथ, ट्रांसपोज होगा तो 25/4 के साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। सो क्रॉस कट 2 टाइम्स 5x equals to 25/2. Now 5 is in multiplied form with x. ट्रांसपोज होगा, सो 5 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 5 हमारा नीचे आएगा, ठीक है, 2 के साथ। सो 5 के साथ 25 क्रॉस कट होगा, 5/2, x इक्वल्स टू 5/2। डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, 2 2 ज़ 4 एंड 1। दिस इज द f part. Now let us solve the g part. See here, 19/2 is the fraction part. We will transpose it there. यहाँ से ये शिफ्ट होके RHS में जाएगा तो नेगेटिव 19/2 हो जाएगा। पॉजिटिव है, ट्रांसपोज हुआ, नेगेटिव हो गया, ठीक है। 13 के नीचे 1 लगा के LCM लेंगे, 2 1 2 ज़ा 2, 13 2 ज़ा 26 माइनस 19 7m। तो 7m इक्वल्स टू 16 माइनस 9 विल गिव यू 7/2, ठीक है। सो 7 मल्टीप्लाइड m के साथ है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड होगा मीन्स कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो 7 से 7 क्रॉस कट, आंसर इज 1/2। सपोज़ आपको इधर से समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, सो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करो, 7 इंटू m है। सेकेंड मेथड हम यहाँ से आपको दिखाते हैं, इससे 7m 7/2 है, ठीक है। 7 के साथ m मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड हुआ, सो यहाँ पे भी आपका डिवाइड ही होगा, नीचे जाएगा, ठीक। तो 7 7 कट, आंसर इज 1/2। सेम वे हियर। दिस वॉज द G पार्ट। नाउ लेट अस कम टू द H पार्ट। H में यहाँ पे +10 है, +10 ट्रांसपोज होगा -2 के साथ तो -10 हो जाएगा, -2 -10 सेम साइन विल एडिशन नेगेटिव ऑफ 12। 6z इक्वल्स टू -12, z इक्वल्स टू 6 के साथ z मल्टीप्लाइड है तो अभी इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। सो 6 में 12 का डिवीजन, इट इज़ इन द नेगेटिव, इट्स वी हैव टू जस्ट राइट इट बाय 12/6। क्रॉस कट कर सकते हैं 12 से तो ये क्या देगा, -2। z इक्वल्स टू -2, दिस इज द आंसर। ओके, H is done. Now solve the I part. I is what? 3 times L/2 equals to 2/3, ठीक है। 2 डिवाइड है, ट्रांसपोज होगा, या आप दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, यहाँ पे देखो 3 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में, तो क्या कर दो, 3/2 है, सो 3/2 L है क्वेश्चन में, सो इसका रेसिप्रोकल क्या है, 2/3। 2 डिवाइडेड है तो 2 से मल्टीप्लाइड, 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 से डिवाइड। LHS में हमने ये चेंज किया है, सो RHS में भी 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड कर देंगे। दिस इज क्रॉस कट, L इक्वल्स टू 2 2 ज़ 4/9। दिस इज द I part. Now let us come to the J part. J is 2b/3, -5,
equals to 3. Minus 5 है. Okay, I am going to show you the first part which I told in the previous video. Minus 5 है, so इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, प्लस 5 है, तो प्लस 5 यहाँ पे ऐड किया, या ये समझो माइनस है तो प्लस से हम कर देंगे चेंज. माइनस 5 है तो प्लस 5 लिया. यहाँ LHS में करेंगे तो RHS में भी प्लस 5 करेंगे. माइनस 5 प्लस 5 क्रॉस कट, 2b/3 इक्वल्स टू 8. अभी इसको हमें वेरिएबल को लाइक सेपरेट करना है इस नंबर से, 2/3 से. सो क्या करोगे, 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 3/2, b रह जाएगा 8. यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, 3/2 से मल्टीप्लाइड, सो RHS में भी 3/2 से मल्टीप्लाइड करेंगे. क्रॉस कट b इक्वल्स टू, और ये हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा, क्रॉस कट हो जाएगा. 8 से गया 4 टाइम्स, 4 3 सा 12. या तो ये मेथड या सेकेंड मेथड भी आपको समझना है, तो लेट मी टेल यू. 2/3 माइनस 5 इक्वल्स टू 3. नेगेटिव 5 है, ट्रांसपोज करेंगे तो 3 के साथ पॉजिटिव 5 हुआ. पॉजिटिव 5, 3 प्लस 5 क्या देगा, 8. सो 2b इक्वल्स टू, अभी 8 है ये, अभी इस 3 को हम इस 8 से ट्रांसपोज करेंगे तो 2b रह गया, डिनोमिनेटर में 3 है तो इट विल मूव अप, 8 इंटू 3. ठीक है, अभी 2 के साथ b मल्टीप्लाइड में, हमको सिर्फ b चाहिए है, सो 2 को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे. 8 इंटू 3/2 क्रॉस कट किया, सो b इक्वल्स टू 12. This is the all part of exercise 4.3 has done. Now let us solve the exercise 4.3 question number 2. What is it? We have to again solve the equations here. The A part is given as 2 times x plus 4. This is equals to 12. अब क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड. क्या किए थे हम कि 2 है ब्रैकेट के बाहर, तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में सेपरेशन साइन प्लस देखेंगे, तो फिर एक बार 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, 2 टाइम्स x क्या बन जाएगा, 2x. प्लस साइन है, प्लस किया, 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू 4 हम पहले लिख देते हैं. ठीक है, 12 हुआ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है, लेट मी शो यू वंस अगेन. ये कोई नंबर हमने लिया, एक्सप्रेशन लिया a इंटू बी प्लस सी, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये क्या देगा, पहले देगा क्या, a इंटू बी, सेपरेशन साइन क्या है, प्लस है, प्लस फिर a मल्टीप्लाई होगा c के साथ, a इंटू सी. ठीक है, बस ये नंबर ब्रैकेट के अंदर जो भी 2 नंबर रहते हैं उनके साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. So let's solve this. 2x, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 12. प्लस 8 है, ट्रांसपोज करेंगे, 12 के साथ ये हो जाएगा -8. 12 - 8 विल गिव यू व्हाट, 4. 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, या 4/2. ठीक है, तो x काट देंगे, इसको क्रॉस कट, x इक्वल्स टू 2. सेकेंड का A पार्ट इज डन. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 B पार्ट. 3 टाइम्स n-5 इक्वल्स टू 21. सो आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लो. देर इज़ वन मोर मेथड, या तो ये 3 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 उधर जाएगा तो डिवीजन भी हो जाएगा. बट सिंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव, सो आई विल यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव मैथड ओनली. 3 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होकर 3n देगा, सेपरेशन साइन माइनस है, माइनस लगाया, फिर 3 दोबारा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 21. 3n माइनस 15 इक्वल्स टू 21. नेगेटिव 15 जब ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव 15 बन जाएगा. 21 में 15 एड अप होके क्या देगा आपको, 36.
3n equals to 36, n equals to 12 3s are 36. Division हो जाएगा n equals to 12. This is the B part done. Now come to the C part. C part is same as your like B किया था, सेम है यहाँ पे LHS part, बस वहाँ पे पॉजिटिव 21 था, यहाँ नेगेटिव 21 है. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 एक बार n से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार 3 5 के साथ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव है, माइनस है, सेपरेशन साइन, यहाँ पे नेगेटिव 12 है ऑलरेडी. 3n इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 15, नेगेटिव ऑफ 21 उधर है RHS में, ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव 15 माइनस 15 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 15. ठीक है, 21 से 15 का सब्ट्रैक्शन होगा बिकॉज अपोजिट साइन, अपोजिट साइन इंटीजर्स में करे हो अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है. 11 माइनस 6 विल गिव 11 माइनस 5 विल गिव यू 6. ओके, सो नेगेटिव 6 बिकॉज 21 बड़ा है. 3n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6, सो n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, सो ये हमारा डिवीजन होके क्या देगा, माइनस 6 अपॉन 2 यानी कि माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 3 यानी कि n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. दिस इज द आंसर फॉर C. नाउ लेट अस कम टू द D पार्ट. माइनस ऑफ 4 2 प्लस x इक्वल्स टू 8. अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड, माइनस 4 इंटू 2, एक बार 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सो माइनस 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा 8. ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है मल्टीप्लिकेशन में. माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, माइनस 4x, 8 इधर है हमारा, माइनस 8 ट्रांसपोज होगा, सो क्या हो जाएगा प्लस 8, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 इज 16, माइनस ऑफ 4x, x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ 4. ठीक है, सो 16 में 4 का डिवीजन क्या देता है, 4 4 ज़ा 16, पर कैसा 4, नेगेटिव 4. x इक्वल्स टू नेगेटिव 4. दिस इज द D part. Now let us solve the E part. E part again distribute 4 इंटू 2, माइनस है ये प्लस है तो माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स ही रहेगा, 8 रहा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4x 8. पॉजिटिव 8 शिफ्ट देयर, it will become 8 minus of 8 0, minus of 4x equals to 0, x equals to 0 by 4, negative 4, it will give you 0 only. So this is all the exercise question 4.3. Question number 1 and 2 are discussed. We'll discuss the question number 3 and 4 in our next video. Thank you.